कल बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे ना जिनके रह गए थे, लास्ट में पूछ रहे, टाइम हो गया था, तो वो लोग बताओ। सर इन 11 जून 60 क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, 11 जून वाले पेपर में 60, ओके। ठीक है, चैट में आप लिख सकते हो 11 जून के जो पेपर्स हैं, तो हम लोग उसको ट्राई करते हैं। तो 11 जून वाला जो पेपर है आपका, चलिए 60, ये 60 इंग्लिश में यहाँ होगा। इन द सीक्वेंस ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, बेसिक प्रोबेबिलिटी का है जिसमें हमारा टेस्ट भी था, जो टेस्ट में क्वेश्चन सब बेसिक प्रोबेबिलिटी के, ये भी बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। So in a sequence of tossing 3 coins simultaneously, the probability of getting all heads or all tails for the second time on the 5th toss, for the second time on the 5th toss, कौन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? Which distribution will it follow? नेगेटिव बाइनोमियल। Yes, so we can use using negative binomial, क्योंकि मैं अगर सैंपल स्पेस बना के देखूंगा बहुत लेंदी होगा, so it's better to use random variable here. So चलिए, सो ये कह रहा है कि इन अ सीक्वेंस ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, सो वी आर 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं बार बार, है ना, लाइक 3 कॉइन्स एक साथ है, यू आर टॉसिंग अगेन एंड अगेन 3 कॉइन्स टुगेदर, ठीक है। सो इन वन टॉस ऑफ 3 कॉइन, ठीक है। तो इन वन टॉस द सैंपल स्पेस वी ऑलरेडी हैव एच एच एच, है ना, आप जानते हो 8 आउटकम्स होंगे टोटल, इस तरीके से टोटल 8 आउटकम, एच 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 एस टी एच टी एस टी एस टी एंड सो ऑन, सो ये 8 आउटकम्स होंगे। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स और ऑल टेल्स, तो P इज एक्चुअली it is actually success, okay, so it is actually success, so this will name at success, so this is the success, so success, so probability of success, so all head or all tail, बताइए जी, what is value of this small p? 1/4 होगा। हाँ, मतलब 2/8 1/4, fine, so 2/8 means 1/4, now second time on the 5th toss, second time on the 5th toss, तो success is second success on the 5th toss, so if we define x as number of toss या trial, तो toss लिख देता हूं, required to get second success, ठीक है, second success is getting both all head or tail, so बताओ जी, नंबर ऑफ टॉसेस है, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द rth सक्सेस, दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू गेट द सेकंड सक्सेस, सो r इज हियर 2, जो मैं r लिखता हूं, दैट r इज बाइनोमियल, सॉरी नेगेटिव बाइनोमियल r, p, so x will have distribution negative binomial r, p, so r is 2 and p is 1/4, okay, so r is 2 and p is 1/4 on the 5th toss, तो x की वैल्यू, तो we need to find probability x is equal to 5, so this is a question, जो वर्ड प्रॉब्लम था हमने मैथमेटिकली उसको कन्वर्ट कर दिया, मैथमेटिकली ये उसकी मीनिंग है कि we have to find x is equal to 5, so 5th ट्रायल पे सेकेंड सक्सेस आएगा and probability of each success is 1/4, so now we have to know just PMF of negative binomial in case of number of trials, ठीक है, यही लिख देता हूं, बताइए जी, तो x is नेगेटिव बाइनोमियल
r comma p. So if x has distribution negative binomial r comma p, where x is number of trial, so what is the PMF of x? कोई बताओ, नेगेटिव बाइनोमियल का पीएम x plus r minus 1c r. This is you are telling in case of number of failure. Negative binomial, though there are two different interpretations and there are two different PMFs, and that's why there are two different means. x minus 1 r minus 1. Yes. So ये वाला केस जो है ये वाला है, x minus 1 choose r minus 1. p raised to the power r successes. q raised to the power घटाओ इसको. x minus r. हाँ, रट्टा नहीं मारना आपको. You know r successes हैं, तो this minus this, है ना? So just x minus r. यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? What is support of x? From r. हाँ, so x is actually number of trial required to get the RH success. So to get R success, you must have to try for at least R time. So support will start from R here. और दूसरा जो बता रहे थे, वहां पे सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, because where there we count number of failures and वहां सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है because failure may be 0. So ये आपका PMF यूज करना है इस क्वेश्चन में. x minus 1 choose r minus 1. Now everything you have, है ना? क्योंकि q is nothing but 1 minus p. तो आइए, so अप्लाई कर लेते हैं. So x is 5, 5 minus 1 choose r minus 1. p is 1 by 4 की पावर r, फेलियर 3 by 4, इसकी पावर 5 minus 2 3. देख लीजिए. सिंप्लीफाई दिस एंड बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है. So second option. ओके, बाकी लोग देख लीजिए. कुछ डाउट है तो पूछिए, इफ यू हैव एनी डाउट. ओके, तो अभी क्या है, अब जो चैट में जो क्वेश्चंस आए, तो ये हमने पेपर ओपन किया है 11 जून वाला, ठीक है. चलिए, तो 60 हो गया, 62 64 क्लोज वाला पहले कर लेते हैं. तो 62 64, तो 62 जो कह रहा है कि a symmetric die is thrown 600 times. Okay. Using Chebyshev's inequality, the lower bound of the probability for getting 80 to 124. तो इसमें क्या है देखिए. Okay, so symmetric die is thrown 600 times. So any 600, x is number of times we get 4. ठीक है, so 4 getting 4 is a success. So number of successes, है ना, number of successes in n trials, which distribution will it follow? Sir, binomial. Binomial, yes. So x will have binomial distribution with parameter 600 and 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है एक डाई पे? 1 by 6. So p is 1 by 6 and n is 600. So ये हो गया. Now the question they are asking कि what is the probability? So Chebyshev inequality, the lower bound for the probability of getting 80 to 124s. So you will get 4 at least 80 to मतलब between 80 and from 80 to 120 times. So ठीक है, तो यहाँ से आप
you just find ex. ex is np. np is 100, मतलब म्यू आ गया. सिग्मा स्क्वायर इज npq. सो 600 इंटू p इंटू q. सो ये हो गया कितना आएगा जी 500/6. ओके. सो नाउ ट्राई कीजिए. सो प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू. सो यू सब्ट्रैक्ट 100, तो यहां बचेगा 20, यहां बचेगा -20. ठीक. सो नाउ प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू. म्यू कितना था 100, ठीक है ना. 100 सब्ट्रैक्ट किया इसमें इसमें इसमें. सो लेस देन 20. सो चेबीशेव्स इनइक्वालिटी सेज व्हाट? प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू लेस देन k और लेस देन इक्वल टू k. हाँ जी. दिस इज मोर देन इक्वल टू व्हाट? बताइए कोई भी. What should I write here? Chebyshev inequalities. 1 minus sigma minus 1 minus sigma by k square, है ना. So 1 minus sigma square by k square. So यहाँ से आ जाएगा आपके पास. So same thing here. More than equal to 1 minus sigma square is 500/6 upon k square. K is 20, 400. तो ये नंबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस ये डबल जीरो काट दो तो हो गया 5/24. ठीक. क्योंकि ये एक साथ है तो 5/24 मतलब कितना 19/24. 19/24. ए ऑप्शन. देखो इनका डाउट है. सो 62 हो गया 64. तो जस्ट स्टेटमेंट याद रखना है ना. यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेबीशेव इनइक्वालिटी. तो बताया तो हो जाएगा. सिक्सटी टू के बाद आपका 64 भी डाउट है. सो ओके. सो द मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x is. So first you have to remember MGF of every standard distribution mentioned in the syllabus. So syllabus को एक एक वर्ड तो पहले पढ़ो. एक एक वर्ड का डेफिनेशन दिमाग में होने चाहिए. देन उससे रिलेटेड थ्योरम्स कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना, क्वेश्चन करने के लिए. सो लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कब कर पाओगे? व्हेन यू विल हैव MGF ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, या एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड है, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो या डिस्क्रीट हो, जिसका नाम सिलेबस में लिखा है. सो वो आपको याद रखने पड़ेंगे. तो देखो तो उससे इजीली हो जाएगा ये. अल्दाउ ये क्वेश्चन जैम 2024 में भी आया है. यू कैन चेक पेपर. जैम 2024 में ये क्वेश्चन है. नॉट एग्जैक्टली सेम. वहां पहले जिन लोगों ने जैम 24 दिया वहां पे क्या दिया था? chi² 1 का पीडीएफ दिया था. देन y = x² दिया था. y chi² 1 क्वेश्चन में पीडीएफ दे रखा है. एंड देन दे आर आस्किंग द सेम थिंग जो यहाँ पूछा गया है. So see here. So mxt जो है e की पावर 2t plus 5t². बताइए जी x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे? normal Normal. म्यूटी प्लस 210. हाँ 210. नॉर्मल मीन कंपेयर करना है जस्ट. सो 2, 10. नाउ हमने कल के क्लास में बताया था एक थ्योरम आपको. देखिए x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की पावर 4 का एक्सपेक्टेशन. एनीवन रिमेंबर? बताओ कल इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने. है ना. x माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर 4 इक्वल टू व्हाट? 1 into 3. यहीं तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, पावर के आगे नहीं जाएगा, है ना. तो आपने ये देखा था वहां पे 2n लिखा था मैंने. तो 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1. तो ये पावर से एक कम तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं. अगर पावर यहाँ 10 लिख दूंगा मैं तो 1 into 3 into 5 into 7 into 9 तक जाएगा.
सो ये पावर तक ही जाएगा, उससे पीछे ही रहेगा, तो 1 into 3 मतलब दिस इज 3। नाउ क्या ये नहीं आ जाएगा डायरेक्ट 3? सिग्मा स्क्वायर भी, सिग्मा स्क्वायर। नहीं, ये सिग्मा मैंने यहाँ यूज कर लिया। अच्छा हाँ ओके। अगर मैं इसको इधर लिखता तो सिग्मा स्क्वायर अभी खुद ही बाहर आएगा ये, तो वहां सिग्मा की पावर 4 होता है ना, तो मैंने सिग्मा यहाँ यूज कर लिया। सो नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट। सो इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई इट, सो दिस विल इम्प्लाई एक्सपेक्टेशन x माइनस 2 की पावर 4। अगर मैं ये लिखता तो ऐसा होता 1 into 3 into सिग्मा की पावर 4 ऐसा होता, अगर ऐसे लिखा होता तो ये चीज है। सो मतलब 3 into और सिग्मा स्क्वायर 10 है तो ये 100 हो जाएगा। सो आंसर इज 300। ठीक है जी, देख लो। सो कल हमने ये फॉर्मूला लिखा था कि म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर 2n इवन पावर इसका एक्सपेक्टेशन 1 into 3 into 5 अप टू 2n माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर इस सिग्मा को इधर बुला सकते हो नो प्रॉब्लम, है ना। अरे इसका क्या हो गया तो तो नेक्स्ट क्या इनका हो गया, तो 62 64 हो गया। उससे पहले 88 82 56। अरे इसका अलग प्रॉब्लम है। ठीक, चलो तो हाँ जी नंदिनी कुछ पूछ रहे हैं आप? कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं? ये CUET 2023 स्टैटिस्टिक्स 11 जून वाला, ठीक है 11 जून। तो इसमें है 88 56 नंबर, देखते हैं क्या था। आपने डिस्कस कर ली? जी जी टेस्ट हुआ था उसका? हाँ टेस्ट का डिस्कशन हो गया, आप लेट हैं, हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी डाउट रहेगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं दोबारा। तो 10 क्वेश्चंस के 3 टेस्ट थे ना, तो उसमें तो जो डाउट हमने भी डिस्कस किया है। सो अगर फिर भी आपके डाउट्स, हाँ सर टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस हो गया? हाँ जो पूछा होगा हो गया होगा, देखना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन तो नहीं दिखा मेरे। हाँ एक बार चेक कीजिए ऐप में क्या है तो बताइए, तो उसमें देखना पड़ेगा मुझे। अभी इसके डाउट कर लेते हैं, फिर बाकी जो डाउट्स रह गए वो अभी आप पूछिएगा इसके बाद, तो ये कर लेते हैं अभी। सर हुआ है वो वाला क्वेश्चन डिस्कस। हाँ तो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, इसका अभी अपलोड होगा तो आप वीडियो देख सकते हैं। ओके सर नो प्रॉब्लम। हाँ 56 ये कह रहा है कि हाँ ये अच्छा इसका अभी भी रह गया ना इसका फॉर्मूला, कोई बताओ जी व्हाट इज द फॉर्मूला, अभी तक मिला कि नहीं फॉर्मूला? लिख के छोड़ देता हूँ। ये 56 एक तो रहा हुआ है क्वेश्चन ना, ये कई दिनों से हमने सॉल्व नहीं किया है। एनीवन हैज फॉर्मूला ऑफ दिस? ये लिखा हुआ है अभी तक हमने सॉल्व। क्या है रूपम, डू यू हैव एनी फॉर्मूला? रुको रुको मैं इधर लिखता हूँ, रुकिए एक मिनट। सो ये फॉर्मूला जस्ट देखना था, वो भूल जाता हूँ देखना ना, ये बिजी रहता है क्लासेस में। जैसे इसका फॉर्मूला मतलब देखना है बुक में, तो फॉर्मूला मुझे याद नहीं अभी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला भेज रहे हैं। हाँ क्या बता रहे हैं आप? 2 बीटा 1 ऐसा कुछ? नो सर नोट में बीटा 1। फिर से बोलिए स्टार्टिंग से। सर नोट में बीटा 1 प्लस ब्रैकेट में बीटा 2। ये रूट के अंदर ही रहेगा या बाहर रहेगा? सब बाहर। ओके तो यहाँ प्लस सब प्लस नहीं बीटा 2 प्लस 3 है ब्रैकेट में। ये डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट 5 बीटा 2 माइनस 6 बीटा 1
-9. 9. ओके, दिस इज अ फॉर्मूला. ये बुक में मिल जाएगा, गुप्ता कपूर वाली बुक में है ऑलरेडी, वो देखना पड़ेगा जस्ट. तो जो बाकी बुक्स में मिल जाएगा. ये एक्चुअली क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला, ठीक है. सो फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ वैल्यूज ऑफ द पियर्सन कोएफिशिएंट्स आर दिस देन द मोमेंट बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज. इसमें पुट कीजिए, मेनली तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो कर पाएंगे. ये है, पुट करके देखिए क्या आंसर आता है. तो बताइए जिनका आंसर आया है. सर केथ पर आंसर नहीं आ रहा था. अच्छा, इसे आंसर नहीं आ रहा है. ओ, फिर तो प्रॉब्लम है. द मोमेंट बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज. क्या आ रहा है आपका? इससे करने पे, इस फॉर्मूले से क्या नंबर आंसर आ रहा है? सर 0.110 कुछ करके आ रहा था. अच्छा, तो ये इसमें से कोई डिवाइड करके देखिए बनेगा कि नहीं. सर नहीं बन रहा सर. तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा मुझे ही. फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वैल्यूज ऑफ पियर्सन कोएफिशिएंट्स आर दिस एंड दिस. एक तो इनको एक्सप्लेन करना चाहिए क्या है बीटा 1 बीटा 2 देन द मोमेंट बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. तो इसका प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करना. मैं अभी किया नहीं, जो लिखा हुआ है मेरे पास वो ट्राई नहीं किया, इसलिए फंसा हुआ है. ठीक है, 56 है अभी मुझे याद है. ठीक है, बोला. उसके बाद था आपका 82 88. देखते हैं, इसको मैं ट्राई करता हूँ. ये है ना. चलिए, suppose two random variable x and y are such that x uniform 0 2 है, y given x ये है. So what is expectation of x square y square? Okay. तो ये कहना चाह रहा है कि x is uniform 0 to y given x uniform 0 x square y 4. So expectation of x square y square. So simply हम लोग क्या करेंगे, मुझे यहाँ y given x है, तो डबल एक्सपेक्टेशन ऑफ x square y square given x. I can write this, no problem. इसको लिख सकते हैं डबल एक्सपेक्टेशन दिस गिवन x. अब जब x गिवन है, सो इस x की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, दिस कैन बी टेकन आउट, क्योंकि x गिवन है. मतलब x, मान लो अगर फॉर एग्जांपल x इज स्मॉल x, कोई स्मॉल x फिक्स नंबर है, सो वो यू कैन रिप्लेस कैपिटल X बाय स्मॉल x है, सो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर बन जाएगा. तो यहाँ से मतलब ये हो गया कि एक्सपेक्टेशन दिस x स्क्वायर विल कम आउट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेशन. सो अभी आपके पास ये है, अब क्योंकि x गिवन है इसीलिए. ठीक है, सो मतलब ये कांस्टेंट हो गया, गिवन है x ना, सो x कांस्टेंट हो गया इस एक्सपेक्टेशन के रेस्पेक्ट में, तो ये बाहर आ गया कांस्टेंट डायरेक्टली. एक्सपेक्टेशन ऑफ kx इज k टाइम एक्सपेक्टेशन x. ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो देखिए सो x गिवन y इज यूनिफॉर्म 0 x स्क्वायर बाई 4. सॉरी, y गिवन x इज यूनिफॉर्म 0 x स्क्वायर बाई 4. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2. ये होता है ना x यूनिफॉर्म में, तो x स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा. वेरिएंस ऑफ y गिवन x ये क्या होगा, सो वेरिएंस ऑफ y गिवन x बताइए फॉर्मूला क्या है. b minus a का होल स्क्वायर बाई 12 है ना, कितना बनेगा, x की पावर 4 अपॉन 16 इंटू 12. इज इट, ये 16 इंटू 12 कितना आएगा,
192 चेक कर लो 16 into 12 192 Yes sir, 180. ओके तो ये हमारे पास आ गया. नाउ वी हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ दिस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसको यूज करके हम लोग E of y square given x can be written as variance of y given x plus expectation of y given x whole square. वेरिएंस का फॉर्मूला से, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ y square given x माइनस एक्सपेक्टेशन होल स्क्वायर. उधर राइट साइड में आ गया तो प्लस हो गया. सो पुट कर लो इसको. तो यहां से x की पावर 4 बाई 192 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, तो x स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर, तो x की पावर 4 बाई 64. ठीक है, तो यहां से इट्स फाइन. चलो यहाँ पुट कर देते हैं. इसका बताओ सिंप्लीफाई करें कितना आ जाएगा. तो ये 16 इंटू 4 है, ये 16 इंटू 12 है, तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा. कितना बनेगा जी बताओ इसका एलसीएम लेके. एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखूं नंबर, तो 192 तो यहाँ रहेगा. ठीक है, 3 टाइम्स है ना ये 60 3 टाइम्स, तो 3 हो जाएगा 4. ऐसा बनेगा क्या, देखिए. तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग. 4 पावर नहीं 4 8 80 चेकर 48. यहां तक ठीक है भाई. कैलकुलेशन चेक करना, कई बार सिली मिस्टेक हो जाता है मुझसे भी. यू जस्ट चेक इट. सो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर टाइम, ये वैल्यू आ गई x की पावर 4 बाई 48. तो यहां से 1 बाई 48 बाहर, एक्सपेक्टेशन x की पावर 6. ओके है. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 6 चाहिए आपको. सो ये तो इजी है ना. इक्वल टू, सो इक्वल टू 1 बाई 48 इंटीग्रेशन x की पावर 6 इंटू पीडीएफ. पीडीएफ कितना है x का, यूनिफॉर्म 0 2 है. सो 1 बाई 2 dx, 0 से 2. बताओ भाई. सो 1 बाई इधर 96 अलग हो गया, और x की पावर 7 बाई 7, तो 2 की पावर 7 बाई 7. देख लो किसके इक्वल आ रहा है, मैच करो भाई. 1/96 2 की पावर 7 बाई 7. बताओ इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के इक्वल है. एनीवन. तो ये बताओ ये किस ऑप्शन के इक्वल आया है. 1/96 इंटू 2 की पावर 7 बाई 7. 4/21. ओके, सो सेकेंड ऑप्शन. ठीक है ना. किसी को डाउट है तो बताओ इसमें. यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट. सो 82 के बाद है 88. हाँ, ये हमने कल सॉल्व किया था. इज इट. अच्छा, ये एग्जैक्टली इसका नहीं किया था, दूसरे का किया था ना. वो फीचर इंफॉर्मेशन फाइंड किया था क्वेश्चन में. ठीक है, तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है नहीं. आई थिंक एग्जाम में कैलकुलेटर सीयूईटी एग्जाम में नहीं होता है, क्योंकि मैंने तो नहीं दिया है. पिछले साल वाले बच्चे से पूछना पड़ेगा. कैलकुलेटर था, मैं पूछता हूँ. सर इस क्वेश्चन में ड्रॉप लिखा हुआ सर आंसर शीट में.
अच्छा ड्रॉप मतलब इसको ड्रॉप कर दिया गया है, ओके। अच्छा एक मिनट, वो मुझे ना, अरे वो लेकिन 7 बजे क्लास थी गेट की, मैं उसको वो नहीं किया। 1 मिनट, वो ना नेट की क्लास थी, 7 बजे लिंक भेजना था। तो इसको ड्रॉप कर दो। वन मिनट।